کہو میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ ایک بہت گہری اور طاقتور دعا ہے۔ اس میں انسان سیدھے اللہ سے کہتا ہے کہ اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان مانتا ہے کہ اصلی حفاظت صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ پھر کہا گیا لوگوں کے مالک کی، یعنی اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے، ہر انسان، ہر چیز، سب کا مالک صرف اللہ ہے۔ جب ہمیں یہ احساس ہو جاتا ہے تو ہمارا ڈر ختم ہونے لگتا ہے۔ پھر لوگوں کے معبود کی، یعنی ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے امید رکھتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد اصلی بات آتی ہے، شیطان کے برے خیالوں سے جو دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ یہی وہ دشمن ہے جو ہمیں دکھتا نہیں، لیکن ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ ہمارے دل میں چھوٹے چھوٹے خیال ڈالتا ہے، کبھی غصہ، کبھی نفرت، کبھی برے کام کرنے کا خیال۔ دھیرے دھیرے انسان ان خیالوں کو سچ ماننے لگتا ہے اور غلط راستے پر چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر وقت اس کی پناہ مانگو، کیونکہ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں برے خیال آئیں تو ترنت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو۔ یہ سب چیزیں شیطان سے بچنے کا مضبوط طریقہ ہیں۔ یاد رکھو، شیطان ہمیں دھیرے دھیرے گراتا ہے، ایک دم سے نہیں۔ پہلے چھوٹے گناہ، پھر بڑے گناہ۔ لیکن جو انسان اللہ کی پناہ میں رہتا ہے، اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ صحیح راستے پر بنا رہتا ہے۔ اس لیے ہر دن، ہر نماز میں، ہر مشکل میں اللہ سے پناہ مانگو، کیونکہ اصلی سرکشا، اصلی سکون اور اصلی کامیابی صرف اللہ کی پناہ میں ہی ہے۔ کہو میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ صرف ایک دعا نہیں بلکہ پوری زندگی کا سہارا ہے۔ آج انسان ہر طرح کی پریشانی سے گھرا ہوا ہے، ٹینشن، ڈر، غصہ، غلط سوچ، لیکن وہ باہر سے تو خود کو سنبھال لیتا ہے، اندر سے ٹوٹتا رہتا ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں شیطان حملہ کرتا ہے، دل کے اندر۔ وہ ہمیں غلط سوچ دیتا ہے، تو کچھ نہیں کر سکتا، سب لوگ تیرے خلاف ہیں، غلط کام کر لے، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ دھیرے دھیرے انسان ان باتوں پر یقین کرنے لگتا ہے، اور یہی وسوسہ، برے خیال ہے۔ اس لیے اللہ ہمیں سکھاتا ہے، میری پناہ میں آ جاؤ۔ جب انسان سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، اس کی سوچ صاف ہو جاتی ہے، اور اسے صحیح راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ لوگوں کے رب کی، یعنی وہ جو ہمیں پیدا کرتا ہے، ہمیں سمجھتا ہے، ہمارے ہر درد کو جانتا ہے، ایون وہ بھی جو ہم کسی کو نہیں بتاتے۔ لوگوں کے مالک کی، یعنی پوری دنیا اس کے کنٹرول میں ہے۔ اگر وہ چاہے تو ایک پل میں حالات بدل سکتا ہے۔ لوگوں کے معبود کی، یعنی ہم صرف اسی کے سامنے جھکتے ہیں، نہ ڈر کسی انسان سے، نہ امید کسی اور سے، بس اللہ سے۔ اب سوچئے، اگر ہمارا دل ہر وقت اللہ سے جڑا رہے تو کیا شیطان ہمیں آسانی سے گمراہ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ لیکن اگر ہم اللہ کو بھول جائیں تو شیطان کے لیے راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں کچھ عادتیں بنانی چاہیے۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہنا، دن میں کچھ وقت قرآن پڑھنا، نماز کی پابندی کرنا، اور غلط سنگت سے دور رہنا۔ یاد رکھو، دل ایک جگہ ہے، یا تو اس میں اللہ کی یاد ہوگی
या शैतान की आवाज, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए हर दिन अपने दिल को साफ करो, अल्लाह को याद करो और उसकी पनाह में रहो। आखिर में यही कहूंगा, अगर जिंदगी में सुकून चाहिए, अगर दिल को चैन चाहिए, अगर बुरे ख्यालों से बचना है, तो सिर्फ एक रास्ता है, अल्लाह की पनाह। कहो, मैं लोगों के रब की पनाह मांगता हूं। सोचिए, इंसान बाहर से कितना मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर से कितना कमजोर होता है। कभी किसी की बात दिल पर लग जाती है, कभी छोटी सी बात रातों की नींद उड़ा देती है, कभी बेवजह डर लगता है, कभी दिल बेचैन हो जाता है, और हमें समझ ही नहीं आता यह सब क्यों हो रहा है। असल में यही वो जगह है जहां वसवसा काम करता है। शैतान हमें दिखता नहीं, लेकिन हमारे दिल में खामोशी से बातें करता है। वह कहता है, तू अकेला है, कोई तुझे नहीं समझता, छोड़ दे सब, और इंसान धीरे धीरे टूटने लगता है। लेकिन अल्लाह हमें पहले ही बता देता है, जब ऐसा हो तो मेरी पनाह मांगो। यानी जब दिल भारी हो, जब दिमाग परेशान हो, जब समझ ना आए क्या सही है, तो बस कहो, ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह में आता हूं। यही वह लम्हा होता है जहां से इंसान की जिंदगी बदल सकती है। लोगों के रब की, वह सिर्फ पैदा करने वाला नहीं, बल्कि हर पल संभालने वाला है। आप गिरते हैं, वह उठाता है। आप रोते हैं, वह सुनता है। आप टूटते हैं, वह जोड़ता है। लोगों के मालिक की, दुनिया में कोई भी इंसान आपका मालिक नहीं है। न कोई आपको पूरी तरह नुकसान पहुंचा सकता है, न कोई बिना अल्लाह की इजाजत फायदा दे सकता है। तो फिर डर किस बात का? लोगों के माबूद की। जब इंसान सिर्फ अल्लाह को अपना सहारा बना लेता है, तो उसका दिल मजबूत हो जाता है। अब वह लोगों की बातों से नहीं टूटता, क्योंकि उसे पता है मेरा रब मेरे साथ है। अब सबसे अहम हिस्सा, शैतान के बुरे ख्यालों से। याद रखो, हर गुनाह की शुरुआत एक ख्याल से होती है। पहले ख्याल आता है, फिर इंसान उसे सोचता है, फिर वह आदत बन जाता है। इसलिए अगर शुरुआत में ही उस ख्याल को रोक लिया जाए, तो इंसान बच सकता है। कैसे रोकें? अल्लाह को याद करके। जब दिल में बुरा ख्याल आए, तुरंत औज़ु बिल्लाही पढ़ो, पानी पी लो, जगह बदल लो, ध्यान किसी अच्छे काम में लगा लो। धीरे धीरे दिल साफ होने लगेगा। याद रखो, शैतान कभी आपको सीधे बुरा नहीं कहता, वह उसे अच्छा बनाकर दिखाता है। लेकिन जो इंसान अल्लाह से जुड़ा रहता है, वह पहचान जाता है कि क्या सही है और क्या गलत। इसलिए अपनी जिंदगी को बदलना है तो दिल को बदलो, और दिल को बदलने का सबसे आसान तरीका है अल्लाह की याद। आखिर में बस इतना समझ लो, दुनिया आपको सुकून नहीं दे सकती, लोग आपको हमेशा खुश नहीं रख सकते, लेकिन अगर आप अल्लाह की पनाह में आ गए, तो आपका दिल कभी खाली नहीं रहेगा। क्योंकि जहां अल्लाह की याद होती है, वहीं सच्चा सुकून होता है। कहो, मैं लोगों के रब की पनाह मांगता हूं। कभी आपने महसूस किया है, सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी दिल बेचैन रहता है? घर है, खाना है, लोग हैं, फिर भी अंदर एक खालीपन, एक अजीब सी घबराहट। यही वो चीज है जिसे हम समझ नहीं पाते।
लेकिन कुरान पहले ही इसका जवाब दे चुका है। यह दिल का मामला है, और दिल ही वह जगह है जहां शैतान हमला करता है। वह आपको डराता है बिना वजह, आपको दुखी करता है बिना कारण, आपको गलत सोच देता है बिना सबूत के। और सबसे खतरनाक बात, वह आपको यह यकीन दिला देता है कि यह तुम्हारी अपनी सोच है। लेकिन अल्लाह हमें सच बता देता है, यह वसवसा है, शैतान की चाल है। इसलिए वह हमें सिखाता है, भागो मत, छुपो मत, सीधे अल्लाह की पनाह में आ जाओ। लोगों के रब की, वह जो आपको सबसे ज्यादा जानता है, आपकी हर कमजोरी, हर डर, हर दर्द आप लोगों से छुपा सकते हैं, लेकिन अल्लाह से कुछ भी छुपा नहीं सकते। और अच्छी बात यह है, वह सिर्फ जानता ही नहीं बल्कि आपकी मदद भी करता है। लोगों के मालिक की, दुनिया में कई लोग हमें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, समाज, दोस्त, डर, हालात। लेकिन सच्चाई यह है, असली कंट्रोल सिर्फ अल्लाह के पास है। अगर वह चाहे तो बिगड़ी हुई जिंदगी भी एक पल में बदल सकती है। लोगों के माबूद की, यानी सिर्फ उसी के सामने झुको। आज इंसान लोगों को खुश करने में लगा है, किसी को इम्प्रेस करना है, किसी से तारीफ चाहिए, लेकिन वह भूल जाता है, अगर अल्लाह खुश हो गया तो पूरी दुनिया की जरूरत ही नहीं रहती। अब सबसे गहरी बात, जो दिलों में वसवसा डालता है। दिल एक मैदान की तरह है जहां हर दिन लड़ाई चलती है। एक तरफ अच्छे ख्याल, दया, सच्चाई, सब्र, दूसरी तरफ बुरे ख्याल, गुस्सा, नफरत, शक, गुनाह। और इंसान जिस तरफ ध्यान देता है वही जीत जाती है। इसलिए हमें अपने दिल की हिफाजत करनी होगी। कम बुरा देखो, कम बुरा सुनो, कम बुरा सोचो, और ज्यादा अल्लाह को याद करो, क्योंकि जब दिल में अल्लाह की रोशनी आती है तो अंधेरा खुद ही खत्म हो जाता है। याद रखो, शैतान आपको रोक नहीं सकता, लेकिन वह आपको भटका सकता है। और अल्लाह आपको मजबूर नहीं करता, लेकिन वह आपको सही रास्ता दिखाता है। तो फैसला आपके हाथ में है, किसकी सुननी है। अगर आप अल्लाह की सुनेंगे तो आपका दिल सुकून पाएगा। अगर शैतान की सुनेंगे तो दिल कभी चैन नहीं पाएगा। आखिर में बस एक बात, जब भी दिल भारी हो, जब भी डर लगे, जब भी बुरे ख्याल आएं, तो यह सूरह पढ़ो, दिल से पढ़ो। कहो, मैं लोगों के रब की पनाह मांगता हूं। देखना, आपका दिल हल्का हो जाएगा और आपको ऐसा सुकून मिलेगा जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती।